Hello dear students, welcome to the class today. So yes children, your first chapter from geography, resource and development, the RT3 had already occurred, RT3 is already finished. So now we are moving to this chapter from political science, power sharing. Got it? So political science में the chapter power sharing, as the word itself signifies the meaning, this is the second time that we are revising this chapter, that power sharing is desirable. होना चाहिए कि नहीं? What are your viewpoints in this? Yes, dear students, it's a very, very, very frequently asked question. The first thing that I would like to start with is, every time I am using, I have to throw this, there is some problem with this marker. By mistake, I have picked on this marker and now this marker is troubling me. Okay. Why is power sharing desirable? Got it? We have to understand कि अगर हम power sharing की बात कर रहे हैं, if we are talking about power sharing, how is it possible and why is it possible that power sharing is desirable? क्या power sharing होना चाहिए? Should the power sharing be there? तो ये जो सवाल है, the question that is there, we have to understand this question through two examples. हम इसको दो example के through समझने की कोशिश करेंगे. And that's why this first topic is there, Belgium and Sri Lanka. We have to understand the power sharing modes in these two countries. ठीक है? Belgium and Sri Lanka, power sharing that is happening, we will be understanding it. So dear students, we are understanding power sharing and why is power sharing desirable. We have to understand it through two examples, and this is frequently asked for 3 marks and 5 marks. Got it? So first you have to explain कि what is power sharing. ठीक है? Explanation of power sharing is needed, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है. आप एक सेम वही चीज लिख सकते हैं, लेकिन then you have to give the example of Belgium and Sri Lanka. Let's understand. Okay. Then the next question that is very importantly asked, the ethnic composition of Belgium. It can be asked for 1 mark or for 3 marks. 5 marks के लिए नहीं आता. This question is not put up for 5 marks. Okay? तो ethnic composition, किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, that you need to mention. Okay? सबसे पहले कि country's total population, and Belgium के बारे में we are understanding कितनी बार आ जाता है that 1 mark के लिए कि Belgium is a country which is as big as, so you have to give the example of Belgium is a country as big as dash dash dash. तो यहां पे you have to talk about हरियाणा. ठीक है? ये आप बताएंगे. दूसरी चीज क्या है? एथनिक कॉम्पोजिशन आप बेल्जियम का दे रहे हो, सबसे पहले आप इसमें बताओगे 59%. आप वैसे you all remember this, but just for your revision point of view, live in Flemish region. Okay, 59% live in Flemish region, and
speak Dutch. हाँ, पूरा परसेंटेज एग्जैक्ट याद करना है. What happens is कि थोड़ा सा भी अगर इसमें आप मिस्टेक करेंगे तो you lose your mark. We cannot afford to lose the marks. Got it? 40% live in Wallonia. Flemish region जब आप बताएंगे, you have to underline this. 40% live in Wallonia. ठीक है? ओके. एंड क्या पहला वाला तो डच भाषा है एंड स्पीक फ्रेंच. ओके, पूरा मत अंडरलाइन कर देना. क्या हो रहा है ना आजकल, दैट यू आर राइटिंग द आंसर एंड यू आर अंडरलाइनिंग द कंप्लीट थिंग्स. प्लीज डोंट अंडरलाइन द कंप्लीट पॉइंट्स. ओके. एंड 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मन. कितने अलग अलग तरीके के भाषा बोलने वाले लोग आपको यहां पे मिल रहे हैं. ओके. 59% are in Flemish region and speak Dutch language. ये यहां से हटा देती हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी. As big as हरियाणा, मतलब हरियाणा याद रखना है कि बेल्जियम हमारे किस कंट्री, किस स्टेट से मिलता जुलता है, तो आपको उसमें हरियाणा देना है. ओके. सो 59%, 40% एंड 1%, 100% हो गया टोटल. तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक कॉम्पोजिशन यू हैव टू रिमेंबर. उसके बाद फ्रेंच जो है, प्लीज अंडरस्टैंड कि एथनिक कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन करने के बाद यू हैव टू से दैट फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हु इज देयर इज रिच एंड पावरफुल. ये जो 40% है, दे आर वेरी रिच एंड वेरी पावरफुल. काफी पैसा है इनके पास. इसके बाद डच स्पीकिंग कम्युनिटी, दे आर इन मेजॉरिटी. ओके. एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग, एजुकेशन एंड अदर थिंग्स दैट आर देयर. तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ऑल दीज पीपल are having certain the problems that were there. It started arising in 1950s and 60s. So tension between French speaking and Dutch speaking people. पूरी बेल्जियम की हिस्ट्री आपको एकदम एथनिक कॉम्पोजिशन आप बताएंगे. उसके बाद what were the reasons of tension in Belgium. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट बेल्जियम. तो आपको पहले टेंशन बताना है, तो वो आप पूरा बताओगे. 3 marks. प्लीज प्रिपेयर इट फॉर 3 marks. कि फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग पीपल के बीच में देयर वाज टेंशन एंड कहां पे हुआ? ब्रुसेल्स में इट हैपेंड. दिस टेंशन हैड हैपेंड इन ब्रुसेल्स. And Dutch speaking people, the people who were speaking Dutch language, they were dominating. Okay, Dutch speaking people wanted majority, they were there, and minority in the capital. Brussels was the capital of Belgium. वहां पे थोड़ा complicated situation था. That the people who are less in number are more powerful in Brussels. तो इसी तरीके से ये टेंशन का कारण समझो. What were the reasons of tension in Belgium? Sri-Lanka and Sri-Lanka. वैसे दोनों साथ में नहीं पूछा जाता. Either it would be asked about Belgium and it would be asked about Sri Lanka. Got it? तो ये आप ध्यान देना कि किस कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्सप्लेन. ठीक है. श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी? यस, हियर यू हैव टू टॉक अबाउट द टेंशन इन ब्रुसेल्स. और यहां पे आपको क्या बात करनी है? श्रीलंका वाला जो प्रॉब्लम है, इट इज बिटवीन द लैंग्वेज स्पीकिंग था तमिल एंड Sinhala. 2 communities were there.
ये भी 3 मार्क्स के लिए ही आपको तैयार करना है. प्रिपेयर फॉर योर नोट्स फॉर 3 मार्क्स एंड फॉर 5 मार्क्स. अब ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है. अब इसमें आपको बताना है कि सिन्हाला स्पीकर्स, यहाँ मेजरली लैंग्वेज बेस्ड टेंशन वाज देयर. There was the community based tension groups were there. दोनों जगह ही लैंग्वेज तो दोनों जगह प्रोमिनेंट है. फ्रेंच लैंग्वेज एंड डच लैंग्वेज. हियर इट इज तमिल लैंग्वेज एंड सिन्हाला लैंग्वेज. ओके, सिन्हाला स्पीकर्स जो थे वो 74% थे एंड तमिल स्पीकर्स जो थे दे वर 18%. ठीक है. वन क्वेश्चन दैट वाज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. पहला तो एक अभी आई टेल यू एथनिक का मतलब, आपको मीनिंग ऑफ एथनिक जो है 1 मार्क के लिए प्लीज प्रिपेयर. मीनिंग ऑफ एथनिक, क्योंकि अगर आप इसको 1 मार्क के लिए नहीं प्रिपेयर करेंगे ना, ये बिल्कुल आ जाता है. सेम एक्सप्लेनेशन यू हैव टू गिव दैट इज गिवन इन द बुक. जो बुक में दिया हुआ है वही चीज आपको बतानी है. गॉट इट. एक तो ये हो गया. दूसरा आपको बताना है कि तमिल में कैटेगरीज जो थे, एक थे श्रीलंकन तमिल्स, एक थे इंडियन तमिल्स. ओके, तमिल नेटिव जो श्रीलंका के हैं एंड अदर्स जो इंडिया से जाके वहां पे सेटल हुए हैं, दे आर द इंडियन तमिल्स. तो तमिल स्पीकिंग एंड सिन्हाला स्पीकिंग, इनके बीच में टेंशन था. सिन्हाला स्पीकिंग पीपल दे वर फॉलोइंग द बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिज्म फॉलो कर रहे थे. एंड 7% आर देयर हु वर क्रिश्चियंस, बोथ तमिल एंड सिन्हाला. ठीक है. कन्वर्टेड कम्युनिटी, यू नो दीज पीपल गेट कन्वर्टेड ना. क्रिश्चियनिटी में यह है कि कन्वर्जन्स होते हैं. दीज पीपल दे गेट कन्वर्टेड एंड कन्वर्जन्स को प्रमोट करके this way 7% people were there who were Christians. तो अब क्या है कि ये जो इस टेंशन को कैसे सॉल्व करना है. पहला तो कॉज ऑफ द टेंशन इन बेल्जियम एंड इन श्रीलंका. गॉट इट. उसके बाद हाउ टू ओवरकम दिस टेंशन. इस टेंशन से ऊपर कैसे आना है, इस चीज को समझना पड़ेगा. पहला तो फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन हु वर देयर. बेल्जियम का जो टेंशन था, फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, काफी प्रॉब्लम हो सकती थी, जहां पे कि द कंडीशन वुड हैव गॉन टू एन एक्सटेंट वेयर द वन कम्युनिटी डिमांड्स अ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. वन कम्युनिटी कैन आस्क फॉर अ डिविजन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. Yes, of course, on the basis of language. Sri Lanka में Sinhala community it enjoyed bigger, काफी ज्यादा नंबर थे ना, 74% Sinhala speakers were there. तो तमिल्स कहीं ना कहीं पे कमजोर पड़ रहे थे. तो श्रीलंका का टेंशन जो है वो थोड़ा अलग था. एंड श्रीलंका में वन थिंग दैट वाज वेरी फ्रीक्वेंटली फॉलोड, जो 1 मार्क के लिए आपको प्रिपेयर करना है, अभी आया भी था, मेजॉरिटेरियनिज्म. 1 mark. The explanation of majoritarianism. What is majoritarianism? ये आपको बताना है. Got it? So, जहां पे अभी आप लोगों ने इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है. This question was asked in pre-boards, but then I did not get a proper explanation that is expected from the board point of view. Majoritarianism में you have to be very clear कि majority community is dominating the minority. Both the communities are there, लेकिन majority इतना ज्यादा अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं कि minority का कहीं ना कहीं से नुकसान होने लगता है. इसके वजह से क्या होता है कि द टेंशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ओके, तो ये आपको बताना जरूरी था कि मेजॉरिटेरियनिज्म, माइनॉरिटी ग्रुप्स फेस लॉसेस. माइनॉरिटी ग्रुप्स आर इग्नोर्ड. माइनॉरिटी ग्रुप्स फील एलिनेटेड. गॉट इट? प्लीज मेंशन अबाउट इट.
तो one question had come in your half yearlies कि where what has happened is कि act is passed and to recognize Sinhala as the official language disregarding Tamil. Lot of one markers are asked from this chapter. काफी सारे. Okay. So in 1956, okay, please understand कि 1956 में majoritarianism was taking place through introduction of Sinhala as the official language. Got it? सिन्हाला लैंग्वेज को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है, तो टेंशन तो होगी. इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. मेजॉरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना पड़ेगा कि all these government measures that were there coming one after another, Sinhala community with its majoritarian policy was dominating the Tamils. So the tension kept on increasing. Okay, ये क्वेश्चन आपको बताना है. Another one is श्रीलंकन तमिल्स. वो क्या कर रहे थे? They were launching parties. Tamils will not be quiet. तो आप जब भी when you are talking about the tension, you have to mention about this Sinhala language. This act. अगर आप ये मेंशन नहीं करते हो, योर आंसर रिमेन्स इनकम्प्लीट. गॉट इट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो आपको इस एक्ट के बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है. ओके, सिन्हाला एंड तमिल स्पीकर्स, इनके बीच का टेंशन बढ़ता चला जा रहा था. एज अ रिजल्ट द कंडीशन लेड टू, ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर. आप 1 मार्क के लिए इसको प्रिपेयर करना. व्हाट इज द सिविल वॉर? एक्चुअली सिविल वॉर क्या है ये आपको बताना पड़ेगा. गॉट इट? देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, हाउ वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड इन बेल्जियम? Five marks. Yes, dear students, you have to prepare this question for 5 marks, where you have to clearly explain the concept of accommodation. Accommodation का concept I will explain you in this manner, जहां पे कि people, one group accommodates the other group. कि तुम भी आराम से रह लो, हम भी आराम से रह लें, साथ में मिलजुल के प्यार से रहते हैं. गॉट इट? दैट इज द कंडीशन, दैट इज द सिचुएशन. ये जब सिचुएशन आती है तब इस सिचुएशन को कहते हैं एकोमोडेशन. गॉट इट? सो दिस ऑल द पॉइंट्स आर गिवन. उसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू मेंशन. Then you have to mention about the central government. Many powers of the central government was given to the state government. पहला तो changes in the constitution was made. 1972, 93 constitution was amended 4 times. ठीक है? इसमें जो points आपको mention करना ही है. I mean, because without that your answer remains incomplete. So you have to mention about amendments in constitution. Next is power shared between state and central government.
इमेजिन यहां पे भी अगर ये मेजोरिटेरियनिज्म लगा देते, ऑफ कोर्स या डच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी, अपने चलाते वो, ऐसा उन्होंने नहीं किया। ओके उसके बाद यू हैव टू मेंशन अबाउट समथिंग दैट वाज कॉल्ड एज Brussels में there was a separate government that was introduced. In Brussels, separate government was introduced which gave equal power to the French speaking and the Dutch speaking people. Okay? देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचना है, यही चीज पावर शेयरिंग में बताई गई है। Separate government in Brussels। 5 मार्क्स के लिए ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। अगर मैं लिखने के लिए कह देती हूं तो पॉइंट्स को इसी तरह पॉइंट्स पे ही लिख के चले आते हो, तो वो नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है। गॉट इट? अंटिल एंड अनलेस यू एक्सप्लेन इट, आपका आंसर कंप्लीट कैसे होगा? ओके and then community government। was introduced। कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ पे भी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम्युनिटी के नाम पे कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है। इट इज द पावर्स दैट हैव बीन गिवन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो पावर्स दिए गए हैं वो ही कम्युनिटी गवर्नमेंट में काउंट होंगे। तो डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग पीपल है, नो मैटर वेयर दे लिव, द गवर्नमेंट हैज पावर। क्या काम करते हैं आपको बताना पड़ेगा। द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, यू हैव टू एक्सप्लेन पावर्स ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। टू बी एक्सप्लेन। ठीक है, अब ये बेल्जियम एंड श्रीलंका की पूरी सिचुएशन है। इसमें सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो स्टेटमेंट्स मैं आपको बुक में ही मार्क कराऊंगी। आई मेक यू मार्क इन द बुक इटसेल्फ। यहां मैं लिख दूंगी, फिर भूल जाओगे, यहां मैं बुक में मार्क करवा देती हूं, सो दैट यू नो कि किस स्टेटमेंट पे बेस करके क्वेश्चंस आ सकता है। सो एक क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ओके, इट इज गिवन इन योर बुक ओनली, वो मैं आपको लिखवा के थोड़ा सा बता देती हूं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, क्या हम सीखते हैं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। गॉट इट? बेल्जियम एंड श्रीलंका। दोनों कहानियों को फिर आपको वो दोनों कहानियां एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। यस डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू एक्सप्लेन श्रीलंका। और इसमें क्या है ना, थोड़ा सा आपको यू हैव टू कंपेयर। ओके, हम जो लर्न कर रहे हैं एक ही जगह पे बता दो ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक तरफ एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ बेल्जियम and on the other hand explain the story of Sri Lanka. Explain both the stories together. तो क्या होगा, that the situation would be very clear। यहाँ पे कि बेल्जियम में leaders realized that the unity of the country has to be maintained and श्रीलंका में क्या है, contrasting example है, बहुत ही उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट सिन्हाला tried to dominate the तमिल्स, जिसकी वजह से की स्थिति, द कंडीशन बिकेम बहुत ज्यादा विस्फोटक हो गई। ओके, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। व्हाई इज द पावर शेयरिंग डिजायरेबल? ओके, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई विल शो इट टू यू इन द बुक इटसेल्फ।
So students, we have started this topic power sharing. This chapter actually power sharing. Lot of points we have discussed. Majorly जो हमको discuss करना था, what we have discussed was about Belgium and Sri Lanka. 3 marks and 5 marks questions asked frequently, okay, about Belgium and Sri Lanka. आपको जो 1 markers के लिए याद करना है, that is ethnic. Please go through it properly. Ethnic का explanation is given here. ये जो glossary है, especially in your political science. Political science का जो आपके जो word meanings हैं, all these glossary is important. Got it, children? So please go through it very carefully. आप अगर इसको सही तरीके से नहीं करोगे, you will be into trouble. 1 markers फिर आप lose कर दोगे. And you cannot manage to lose 1 mark in your boards. Are you getting my point, children? So please go through it properly. Then majoritarianism का explanation is here. I was very rejected and dejected in your pre-boards when the word meaning was asked, but I did not get a satisfying meaning. तो आपको इसमें whenever you talk about the majoritarianism, आपको minorities के बारे में explain करना ज़रूरी है. ज़रूरी इसलिए है because that is what majoritarianism is all about. जहाँ पे a majority community is trying to dominate the minorities very badly. Okay, तो उसको हम majoritarianism कह रहे हैं. The other thing is the solution that was found out, all the points that were there, ये सारे points आपको देने हैं. इसके बाद where we had stopped, ये मैं आपको बताना चाह रही थी. Question, please prepare it for 1 and 3 marks. Why power sharing is desirable? यहाँ पे आपको ये अक्सर पूछा जाता है. आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. Please don't get confused, my dear children. पावर शेयरिंग डिजायरेबल में 2 ही चीज आपको बतानी है. That is, पहला क्या है? पहला is the, okay, first reason is prudential and second is moral. Why power sharing is, क्यों power sharing होना चाहिए? तो उसमें आपको रीजंस देना है प्रूडेंशियल एंड मोरल. तो उसमें आप डिटेल में क्या बता रहे हो? व्हाट एक्चुअली इज प्रूडेंशियल एंड व्हाट इज मोरल. अब प्रूडेंशियल का एक्सप्लेनेशन इज हियर. 1 मार्क मैंने बताया आपको, 1 मार्क एंड 3 मार्क. केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा. जब हम क्लियरली फायदे और नुकसान की बात कर रहे हैं, गॉट इट, देन इट इज प्रूडेंशियल. कि दिस मच ऑफ पावर शेयरिंग विल गिव अस दिस बेनिफिट एंड इफ वी आर नॉट डूइंग इट तो हमको कहीं ना कहीं से नुकसान होगा. तो फायदे और नुकसान पे बेस करके जब पावर शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप यहां पे हम ये भी दे सकते हैं. 1992 वाला जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, दैट वाज द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. यस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर्स दिए गए सो दैट सेंटर और स्टेट का बर्डन थोड़ा कम हो जाए और लोकल लोगों को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे पाए. गॉट इट? सो प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन में तो मोरल है, एज यू नो इट वेरी वेल. ठीक है, पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम के लिए प्रूडेंशियल है एंड मोरल इज की वैल्यूएबल है. वैल्यू मिलता है, सारे लोगों को पावर शेयरिंग में कुछ ना कुछ शेयर मिलना चाहिए. दैट इज व्हाट इज मोरल रीजन. ठीक है,
रेस्ट हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसका एग्जाम्पल्स दे सकते हो. Forms of power sharing we'll be discussing in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.